Next is exercise 6.2, question number 2. And question number 2 is write a Pythagorean triplet whose one member is 6. Clear? हमने इसमें क्या करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है जिसका वन मेंबर जो है क्या है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, वन मेंबर 6. क्लियर? तो हमने इससे पहले किया कि ये नंबर्स हैं 2m n square minus 1 and m square plus 1 form a Pythagorean triplet. क्लियर? तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना है, टेकिंग m square minus 1 is equal to 6. क्योंकि अब यहां हमारा मेन मोटिव क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that we can find the required Pythagorean triplet. क्लियर? सो अब यहां से देखिए m square minus 1 अगर 6 लिया तो m square की वैल्यू आ गई 6 plus 1 which is equal to 7. And again 7 is not a perfect square. Therefore the value of m will not be an integer. तो m की वैल्यू यहां पे इंटीजर नहीं हो सकती है. राइट? नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं m square plus 1 से. अगर हम m square plus 1 अगर 6 लेते हैं तो m square की वैल्यू क्या आ गई, 6 minus 1 and this is equal to 5. Again 5 is not a perfect square number. Therefore again the value of m will not be an integer. It will not be an integer. Right? So next taking 2m is equal to 6. Now 2m is equal to 6 gives m is equal to 6 by 2 and this is equal to 3. तो 3 यहाँ पे आपका इंटीजर आ गया. अब इसी की हेल्प से आप m square plus 1 और m square minus 1. Clear? So m square plus 1 is equal to 3 square plus 1 and this is equal to 10 and m square minus 1 is equal to 3 square minus 1 and this is equal to 8. Clear? Hence the required triplet is 6, 8 and 10. 6, 8 and 10 be the required. So this is the required answer. Next is exercise 6.2, question number 2. And question number 2 is write a Pythagorean triplet whose one member is 6. Clear? हमने इसमें क्या करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है जिसका वन मेंबर जो है क्या है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, वन मेंबर 6. क्लियर? तो हमने इससे पहले किया कि ये नंबर्स हैं 2m n square minus 1 and m square plus 1 form a Pythagorean triplet. क्लियर? तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना है, टेकिंग m square minus 1 is equal to 6. क्योंकि अब यहां हमारा मेन मोटिव क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that we can find the required Pythagorean triplet. Clear? So अब यहां से देखिए m square minus 1 अगर 6 लिया तो m square की वैल्यू आ गई 6 plus 1 which is equal to 7. And again 7 is not a perfect square. Therefore the value of m will not be an integer. तो m की वैल्यू यहां पे इंटीजर नहीं हो सकती है. राइट? नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं m square plus 1 से. अगर हम m square plus 1 अगर 6 लेते हैं तो m square की वैल्यू क्या आ गई, 6 minus 1 and this is equal to 5. Again 5 is not a perfect square number. Therefore again the value of m will not be an integer. It will not be an integer. Right? So next taking 2m is equal to 6. Now 2m is equal to 6 gives m is equal to 6 by 2 and this is equal to 3. तो 3 यहाँ पे आपका इंटीजर आ गया. अब इसी की हेल्प से आप m square plus 1 और m square minus 1. Clear? So m square plus 1 is equal to 3 square plus 1 and this is equal to 10 and m square minus 1 is equal to 3 square minus 1 and this is equal to 8. Clear? Hence the required triplet is 6, 8 and 10. 6, 8 and 10 be the required. So this is the required answer. Next is second part. Write a Pythagorean triplet whose one member is 14. तो इसको भी हमें यहीं से स्टार्ट करना. फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग m square minus 1 is equal to 14.
Clear? Now m square is equal to 14 plus 1 and this is equal to 15. अगर ये 15 आ गया, then the value of m will not be an integer क्योंकि 15 किसी का perfect square है ही नहीं, ठीक है? Therefore m will not be an integer, right? M will not be an integer. Next, taking m square plus 1 is equal to 14. तो हमने क्या लेना है? m square plus 1 is equal to 14. So m square is equal to 14 minus 1 and this is equal to 13. अब 13 भी किसी का perfect square नहीं है. Then again value of m will not be an integer. Then again value of m will not be an integer. Right? ठीक है, अब ये दोनों केसेस में नहीं इंटीजर आया तो हम थर्ड केस लेंगे, दैट इज टेकिंग m is equal to 40. Clear? So m is equal to 14 by 2 and this is equal to 7. 2m is equal to 14, so m is equal to 14 by 2 and this is equal to 7. Clear? अब ये 7 आ गया तो इसकी हेल्प से आप m square minus 1 और m square plus 1 फाइंड आउट करें, तो ये आ गया 7 square minus 1 48, 7 square plus 1 and this is equal to 2. Clear? Hence the required triplet B 14, 48 and 2. Clear? So this is the required. Next is square root. Square root is the inverse operation. Square root is the inverse operation of scale. Square root is the inverse operation of square. क्लियर? क्या मतलब? अब मैं आपको ये एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ये जो मैं एग्जांपल अभी लिखूंगा इसको आपने ऑब्जर्व करना है. फर्स्ट 11 square is equal to 120, right? 12 square is equal to 144. 13 square is equal to 169. 25 square is equal to 625. From these four examples, what we have observed? We have observed 11 square is equal to 121, 12 square is equal to 144, 13 square is equal to 169, 25 square is equal to 620. क्लियर? तो ये तो सारा परफेक्ट स्क्वायर आपको दिख रहा है, लेकिन यहां से क्या है कि 11 का स्क्वायर 121. इसका मतलब क्या है कि जो स्क्वायर रूट है, मैंने यहां पे क्या लिखा है, स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर. सो स्क्वायर रूट ऑफ 121 is equal to 11, right? Square root of 144 is equal to 12. Square root of 169 is equal to 13. Square root of 625 is equal to 25. Clear? Square root of 625 is equal to 25. And this is the symbol we use for square root. ये सिंबल हमने यूज करना है. This is the symbol for square root. और जैसे मैंने ये लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 121 का जो स्क्वायर रूट है दिस इज इक्वल टू 11. क्लियर? तो इसके बहुत सारे मेथड है
फाइंड आउट करने के, एक है बाय रिपीटिंग सबट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। और जो रिपीटेड सबट्रैक्शन है वो उसी केस में आप फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें आपका वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसी केस में आप रिपीटेड सबट्रैक्शन यूज करके उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरह यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट ऑफ 625, स्क्वायर रूट ऑफ 625 is equal to 20. Clear? So this is the concept of square root. Clear? Next is method to find square root of a number. First method है आपका through repeated subtraction. Through repeated subtraction. Second is by prime factorization method. Prime factorization. Next, long division method. And next is through estimation. Clear? तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पहले बाय रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट through repeated subtraction. Through repeated subtraction. Through repeated subtraction. Clear? अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और ये ट्राई दीज में से हम ले रहे हैं फ्रॉम ट्राई दीज पेज नंबर, उससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ट्राई दीज page number 100. Try these page number 100. By repeated subtraction of odd numbers. जो repeated subtraction का कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है और वो यूज क्या करना है, repeated subtraction of odd numbers starting from 1. Find whether the following numbers are perfect square or not. If the number is perfect square, then find its square. Clear? तो ये repeated subtraction वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले भी किया हुआ है, तो वैसे ही करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है 121. क्लियर? तो 121 को पहले हमें चेक करके बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, then find its square. Clear? So start subtracting odd numbers from 1. पहले हमने 1 माइनस किए, फिर आ गया 120 and then 120 minus 3, this is equal to 117. 117 minus 5, 112. 112 minus 7, 105. 105 minus 9, and this is equal to 96. 96 minus 11, 85. 85 minus 13, 72. 72 minus 15, 57. 57 minus 17, 40. 40 minus 19,
21 minus 21 0. क्लियर? अब ये 0 आ गया, इट मींस क्लियर दैट 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तब ये जाके सक्सेसफुली जो है हमने 11 टाइम्स जो है ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया? 11 का। Therefore 121 is equal to 11 square, means 121 is a perfect square. Perfect square, right? And hence square root of 121 is equal to 11. Square root of 121 is equal to 11. Clear? जिस स्टेप पे ये आ गया, जैसे देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11, तो 11th स्टेप पे ये 0 आ गया, इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है 121 परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका जो स्क्वायर रूट है 11th स्टेप पे आ रहा है 0, तो ये किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 11। क्लियर? जिस स्टेप पे भी आएगा 0 आ गया, तो वो इसका उतने स्टेप्स आपने काउंट कर लेने हैं, दैट नंबर विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन परफेक्ट स्क्वायर, राइट? नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बेटा देखिए यहाँ पे नाम से ही क्लियर है कि हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करके किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल क्या नंबर मैंने लिया 144, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो 272 जा 144, 236 जा 72, 218 जा 36, 29 जा 18, 33 जा 9, 31 जा 3। तो 144 के जो प्राइम फैक्टर आ गया कौन कौन से आएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, हमने 144 का स्क्वायर रूट फाइंड। क्लियर? तो 144 को हम इस सिंबल के स्क्वायर रूट का जो सिंबल है उसके अंदर रख लेंगे, एंड देन पेयरिंग द प्राइम फैक्टर्स। क्या करना है? प्राइम फैक्टर की पेयरिंग करनी है। ये देखिए एक ये पेयर आ गया, राइट इट एज ओनली 2, एक ये पेयर आ गया, राइट इट अगेन एज 2, ठीक है? एक ये पेयर आ गया, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया 3। क्लियर? तो ये क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड दिस इज इक्वल टू 12। Therefore 12 is the square root of 144. Clear? So this is called prime factorization method to find the square root of n. Clear? Next question is question number 4, and question number 4 is find the square root of following numbers by prime factorization. कौन सा मेथड यूज करना हमने? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। क्लियर? सो फर्स्ट 2 multiply 882 1764, next 2 441 जा 882, 147 3 जा 441, 349 जा 147, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. So 1764 is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7 multiply 7. राइट? उसके बाद पहले आपने ये लिखना, उसके बाद स्क्वायर रूट इसका। स्क्वायर रूट ऑफ 1764 is equal to पेयरिंग द प्राइम फैक्टर्स। तो एक ये पेयर बन गया आपका 2, एक ये पेयर बन गया मल्टीप्लाई 3, एक ये पेयर बन गया मल्टीप्लाई 7। क्लियर? ये कितना हो गया? 2 3 जा 6 6 7 जा 42. Therefore 42 be the required square root of 1760. Okay, so this is the required. Next is fourth part 4096.
इसके भी आप प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करें 2096 2048 2 जा 4096 1024 2 जा 2048 512 2 जा 1024 256 2 जा 512 128 2 जा 256 64 2 जा 128 32 2 जा 64 16 2 जा 32 8 2 जा 16 4 2 जा 8 2 2 जा 4 2 1